आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट जेमस्टोन्स के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि ये जेमस्टोन पहन लो, वो जेमस्टोन पहन लो। हाउ रियल इज दैट? It's not like that. Suppose today you are going to wear a gemstone, and very next day you will going to get the result. बर्थ चार्ट के हिसाब से कैन यू ऑल प्रेडिक्ट वेदर दैट पर्सन कैन डू ओनली जॉब और बिजनेस? Obviously, I can predict. देखो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो केवल D1 चार्ट देख के प्रिडिक्ट कर देते हैं, बट आपको जॉब करनी है या आपको बिजनेस करना है, फॉर दैट यू हैव टू चेक द अस्तक वर्ग चार्ट. आपने जैसे कहा कि आपने पीएचडी परस्यू किया है, राइट, फ्रॉम यूएसए, राइट? सो मुझे ये जानना है हाउ डिफरेंट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम वैदिक एस्ट्रोलॉजी? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल रेमेडीज होती है कि अगर आप किसी पंडित के पास जाते हो या लोकल एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो कुछ ना कुछ रेमेडीज देते हैं, बट international remedies are far differ from Indian Vedic astrology. In today's episode, we are diving into the fascinating world of astrology, where prediction don't just talk about the future, but help shape life decisions around career, money, relationship, and success. We are joined by Dr. Vishal, founder of AstroWorld, a renowned celebrity astrologer with 14 plus years of experience and over 1,65,000 satisfied clients across India and overseas. A PhD gold medalist astrologer and IFA 2024 award winner, his mission is to help people overcome challenging situations through powerful astrological guidance and remedies. So friends, watch this entire episode. Before you even start watching this episode, sit down with pen and paper and don't forget to like, share and subscribe. In today's episode, we are diving into the fascinating world of astrology, where prediction don't just talk about the future but help shape life decisions around career, money, relationship, and success. We are joined by Dr. Vishal, founder of AstroWorld, a renowned celebrity astrologer with 14 plus years of experience and over 1,65,000 satisfied clients across India and overseas. A PhD gold medalist astrologer and IFA 2024 award winner, his mission is to help people overcome challenging situations through powerful astrological guidance and remedies. So friends, watch this entire episode. Before you even start watching this episode, sit down with pen and paper and don't forget to like, share and subscribe. Welcome to Ek Search, Dr. Vishal ji. Thank you, doctor. Thank you so much for being here, and you've traveled all the way from Surat for this podcast. It's my pleasure, ma'am. It's our privilege also to, talking about this topic itself makes me very excited because astrology ऐसी टॉपिक है ना कि आज के ज़माने में आप कुछ भी करने जाओ आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ तो किसी के सजेशंस के साथ शुरुआत करें, कुछ अच्छी चीज़ करने जाओ तो भी ऐसा लगता है कुछ लोगों का जो एक्सपर्ट रहता है एस्ट्रोलॉजी में उनके पास हम थोड़ा सा सजेशन ले लें. I am here for that. Thank you so much once again for being there. So this entire show is about एक सोच, one idea that changed your life. कहते हैं ना जिंदगी में हम लोग कुछ भी करें वो एक आइडिया ऐसी होती है ना जो आपको 360 डिग्री बदल देती है. तो आपकी ऐसी कौन सी आइडिया थी जिसने आपको एस्ट्रोलॉजर बना दिया और आपकी जिंदगी को बदल दिया? It's all about my mom. तो सबसे पहले जब भी मैं 12वीं में था, मैं साइंस में था, उस टाइम पे क्या हुआ, आई यूज टू फेल्ट इन डिप्रेस कंडीशन. तो मेरी मम्मा ने कहा चलो कोई एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आते हैं. तो फिर वहां से एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, उन्होंने मेरा मोरल एकदम से तोड़ दिया. फिर उन्होंने बोला चलो एक और अच्छे पंडित के पास जाती हूँ. फिर वहां पर भी गए, उन्होंने वापिस से मेरा मोरल तोड़ा. तब से एक दिल में खनक सी थी कि ये लोग जो बोल रहे पंडित कि अगर आपकी कुंडली में सूरज नीच का है और आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते तो मुझे ये करके दिखाना है. वहां से एक दिल में पैशन जगा कि ये लोग अगर
बिना कुछ नॉलेज के, बिना कुछ डिग्री के ये एस्ट्रोलॉजी का काम कर सकते, तो मैं क्यों नहीं इसको प्रोफेशनली पढ़ के लोगों को एक जेन्युइन वे में कुछ अच्छी सी सोच के साथ मैं उनको नया गाइडेंस दूं. Correct. And naturally, God had given me that Gifted. power that I don't know. True. And for that, I went to UK for further studies in astrology. Then I went to USA for my PhD Wow. in astrology. फिर इंडिया आया तो देखा कि यहाँ की जो रेमेडीज है ना वो डिफरेंट है. Correct. तो घर वालों ने बोला एक काम कर, अभी दिल्ली जा, वैदिक यहाँ एस्ट्रोलॉजी, भी, हाँ. हाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़. फिर मैंने ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी एसोसिएशन है दिल्ली में, वहां से मैंने 2 साल वैदिक एस्ट्रोलॉजी किया. अरे वाह. और फिर धीरे 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 करके ये एक पैशन था जो मेरा, उसको मैंने एक प्रोफेशनल में तब्दील कर दिया. बट माई इंटेंशन इज सो प्योर कि आई जस्ट वांट टू हेल्प पीपल, True. not want to earn money, because he had given me already a lots of money. So my intention is clear that I will help people to get rid out of their typical situation or any challenging situation. Correct. So That is how ऊपर you. वाले की मर्जी और ये मेरी माँ का सपोर्ट मुझे एस्ट्रोलॉजी में लेके आया. Wow. So your journey has been very adventurous. कहते हैं ना कि भाई कभी कभार ये साइंस होती है, राइट? आपको बार बार आपकी मॉम ने एस्ट्रोलॉजर के पास आपको लेकर गए, वहां से आपको लगा कि यार ये मेरा मोराल पूरा डाउन कर रहा है, तो वो चैलेंजिंग सिचुएशन था कि यार अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा. और प्लस यूनिवर्स भी मुझे सपोर्ट कर रहा था. उस टाइम पे ऐसी ऐसी सिचुएशन बनी कि लाइक नो यू हैव टू डू दिस. मैंने 2-3 बार, आज पूरी ऑडियंस को बताना चाहता हूं कि मैंने 2-3 बार एस्ट्रोलॉजी क्विट करने की सोची, बट ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट हो गया कि वो वापस से मुझे ये फील्ड में लेके आया. करेक्ट. सो देयर इज, आपने जैसे बोला कि यूनिवर्स आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? आई एम सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ यूनिवर्स. द ऑल पावर, ऑल नेम, all fame, all money, all wealth I deserve from universe. Yeah. I just manifest each and everything. True. And that universe have to give me. True. Sometimes क्या होता है कि लोग बहुत सारी विजुअलाइजेशन प्रोसेस करते, मैनिफेस्टेशन करते, बट रियलिटी में वो नहीं होता. Correct. यूनिवर्स तो आपको देने के लिए ही बैठा है. But we don't know the power of it. Yes, you don't know how to connect your energy with universe. एक जो एक ट्यून अप होता है ना, जब रेडियो की आप चैनल ट्यून अप करते हो, उसी तरह आपकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स की जो एनर्जी है उनके साथ अलाइन करनी पड़ती है. Yeah. Then you will get what you deserve. Correct. You rightly said. Very important to believe also. Yes, right? believe, faith, moralism, each and everything. It's universe. It is universe. Whatever Yes. we are having or whatever we are today, it's all because of universe. Yes. And somewhere कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है, like you know, I am also firm believer of universe and exchange Yes. of energies. Yes. Right? मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपने जो पहले मैनिफेस्ट किया है, शायद Hmm. सबकॉन्शियस माइंड में भी वो आपने मैनिफेस्ट कर रखा है, और Yes. कहीं ना कहीं उसी के रिजल्ट्स आप अभी जनरेट कर रहे हो. Obviously. So that powerful universe is. Now coming back to astrology, आपने जैसे कहा कि आपने PhD परस्यू किया है, Yes. like from USA, right? So मुझे ये जानना है, how different is international astrology from Vedic astrology? देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जो हमारी नॉर्मल रेमेडीज होती है कि अगर आप किसी पंडित के पास जाते हो या लोकल एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वो कुछ ना कुछ रेमेडीज देते हैं कि आप ये नारियल चढ़ाओ मंदिर में, ठीक है, ये धागा इधर जाके बांध लो, या तो फिर कोई जेमस्टोन पहन लो, ठीक है, या तो फिर आपको बोलेंगे कि आप ये फास्ट रखो, ये उपवास रखो, ये मन्नत रखो, और कहीं ना कहीं सूरज को अर्घ चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं. Yeah.
इट्स प्रूव दैट साइंटिफिकली इट्स प्रूव दैट सूरज को जल चढ़ाने से वी गॉट लॉट्स ऑफ एनर्जी. Yeah, true. बट इंटरनेशनल रेमेडीज आर फार डिफर फ्रॉम इंडियन वेदिक एस्ट्रोलॉजी. उसमें क्या होते हैं, वो लोग जो हीलिंग थेरापीज है, हाँ. लाइक साउंड हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, वो सब थेरापीज का यूज करते हैं. जैसे हमारी आयुर्वेदिक की एक नेचुरोपैथी है, Yeah. वहां पे भी नेचुरोपैथी यूज होती है, लेकिन जो उनके प्रोडक्ट्स है, जो हर्ब्स है, वो डिफरेंट है. Correct. एंड आई फर्मली बिलीव दैट दे यूज एनर्जी एक्सचेंज वाया मनी. Mm-hmm. वाया मनी दे यूज एनर्जी एक्सचेंज. हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये दिया, भगवान से ये मांग लिया, ये दिया, हमने ये मांग लिया, कैंडल चढ़ाया, इससे ये मांग लिया. वहां पर ऐसा नहीं है. वहां पर दे want money Correct. because they can understand money is also a tool Yeah, or modality to exchange energy. true. Money itself an energy. Absolutely. आप पैसा खर्च नहीं करोगे तो आपके पास आएगा भी नहीं. Yeah, correct. आपने देखा होगा कहीं पे लोग थोक जमा करते, ये जितना भी आया सेविंग वो जमा करते रहते, हाँ. उनका सारा एक ही साइड में निकल जाता है. बट जो आदमी पैसा खर्च करता है, उसके पास आता है. उसके पास आता है, बिकॉज यूनिवर्स जानता है कि ये 10 गुना पैसा कमा रहा है तो 20 गुना बात भी रहा है, तो इसको मुझे 40 गुना देना पड़ेगा. Yes. तब जाके ये जो 10-20% वाले लोग हैं ना, वो आराम से रह सकेंगे. Correct. सो यूनिवर्स हैड ईच एंड एवरी पावर, एंड फॉरेन में यही रूल्स पे वो लोग काम करते. So basically, they believe too much in exchange of energy. Yes. So energy exchange is the main criteria. यस. और यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देखने का 1500 मांग रहे, हाँ. 2000 मांग रहे, तो लग रहा है कि ये 1500 किस चीज के, 2000 किस चीज के. वो पंडित तो 50 रुपए में कुंडली देखता है, वो 100 रुपए में देख रहा है. करेक्ट. बट जो जर्नी है यहाँ से वहां तक की एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर की, उसमें मैम बहुत सारा खर्चा लगता है. यस, एब्सोल्युटली. कोई फादर की आधी जिंदगी की कमाई इसमें निकल जाती है. करेक्ट. तब जाके हम ये लेवल अचीव करते हैं. और लोगों को लग रहा है कि वहां पे बैठ के पॉडकास्ट करने से, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताने से हम फेमस हो गए. बट रियलिटी में ऐसा नहीं है. देयर आर लॉट्स ऑफ फेक एस्ट्रोलॉजर्स. There are, but with this digitalization, I've seen that जिन्होंने, जैसे आपने तो कई पढ़ाई की है, Yes. right? You have taken a good education in astrology, and that's where you have perceived that as a profession. But I've seen, like, with this digitalization, people have started taking coaching programs in astrology. Yes. Like short certificates लेके भी वो लोग शुरू कर देते हैं. कहीं ना कहीं वो चीजें अफेक्ट करती है. बट टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, मुझे लगता है बहुत सारी सुपरस्टिशंस भी है. Do you really think, according to you, you are an expert in astrology, do you really think that astrology is real or it's just a psychological belief? No, it's real. It's not a psychological belief. First of all, astrology is an art. Is the art of prediction. साइंस में क्या होता है? केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होती है. तो एस्ट्रोलॉजी में भी वही है. करेक्ट. जो प्लेनेट है उसके मूवमेंट है, उसकी फिजिक्स है, उसका कितना मास है, वो उस कौन से केमिकल, कौन से इनऑर्गन से वो बना है, वो उसका केमिस्ट्री है. और बायोलॉजी तो हम देख ही रहे, उनका प्लेनेटरी जो ट्रांजिट हो रहा है, कि आज मानो कैप्रिकॉन से एक्वेरियस में गया, चंद्रमा आज एक्वेरियस से पाइसिस में गया, वो उसका ट्रांजिट जो होता है वो एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी है. इट्स नॉट सुपरस्टिशन. लाइक इट्स नॉट जस्ट अ बिलीफ, इट्स इन Yes. रियल. इट्स अ प्रेडिक्शन, एज यू राइटली सेड, कि यार इसमें भी कई सारे कैलकुलेशंस होते हैं. मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशन इज द बेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी. करेक्ट. इट्स नॉट लाइक साइकिक एक्टिविटी और लाइक मैजिकल शो या. कि चलो एस्ट्रोलॉजर के पास गए,
तो लाइफ में कुछ मैजिक हो जाएगा. देयर इज नथिंग लाइक दैट. अब जैसे मैजिक की बात कर रहे हो, डू यू रियली थिंक कि एस्ट्रोलॉजी से इंसान बहुत ज्यादा अमीर भी बन सकता है? Obviously, you can be a millionaire by using astrology, but under the guidance of professional astrologer या and doing some professional remedies, you can be. so you can change your entire, like, thought or a game to be in the like, in the road of being successful. Obviously, according to me, if I can do, then anybody can do. If I can do, then anybody can do. Correct. But most important thing is first heal yourself. Correct. Then and then you can do anything. Otherwise, जो सब करते गधे भी मेहनत करते, सब मेहनत करते. Correct. You rightly said, like, it's very important to heal yourself. Yes, अगर आप obviously. ही heal नहीं कर रहे हो, अपने आप को आप heal नहीं कर रहे हो, it will not create an impact, right? In whatever prediction may that expert have done, और जो भी रेमेडीज उन्होंने आपको बताई है कि ये पहन लो, वो पहन लो, तो शायद वो जेमस्टोन्स भी शायद आपको काम नहीं आएगी. सही है, नहीं राइट? काम अगर आप करेगा. अपने आप को हिल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जीज जो आपको मिलने वाली है, वो भी शायद आपको हेल्प नहीं कर पाएगी. आई डोंट थिंक सो. सो अगर मैं जेमस्टोन्स की बात करूं सर, कई आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट जेमस्टोन्स के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि ये जेमस्टोन पहन लो, वो जेमस्टोन पहन लो. हाउ रियल इज दैट? डू यू थिंक कि वो चीज आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है? ऑब्वियसली, सबसे पहले आपको अपनी कुंडली अलाइन करनी है. अकॉर्डिंग टू दैट, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड which gemstone is highly beneficial to you according to your chart, and then you have to heal your chakras by wearing that gemstone. Correct. Then it will affect you. And I think it's not like that. Suppose today you are going to wear a gemstone and very next day you will going to get the result of that wearing gemstone. No, it's not like First, that. it should be aligned with your body's 7 chakras. Then and then it will give you a result. Approximately it will take 7 to 8 months. And मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, पूरे यूनिवर्स में एक ही ऐसा स्टोन है, ब्लू सफायर, जो आपको पहनते ही 7, 8, 9 या 10 इतने दिन में रिजल्ट दे देगा. दैट आई एम डैम श्योर. अगर वो आपको सूट हो गया, देन यू कैन वेयर इट. अदरवाइज यू सडनली हैव टू रिमूव इट. अच्छा, सूट नहीं हुआ तो यू हैव टू रिमूव इट. बट दैट इज कॉमन फॉर ऑल, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सभी के लिए. ब्लू सफायर, जो कि आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के हाथ में देखा होगा, लाइक अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, इवन सोनू निगम, बहुत सारे लोग पहन रहे. तो कहीं पे भी पहन सकते वो, नहीं, एज अ ब्रेसलेट. हाँ, या फिर एज अ ब्रेसलेट, मतलब अपने बॉडी से टच होना चाहिए. ओके. हाँ, तभी जाके वो हील करेगा. जब नेचुरल की जो सनलाइट है वो उसमें जाके एक्सप्लोर होगी, और वो वहां से इंटेंस होके अपने ब्लड में जाएगी, वहां से सेल में जाएगी, और वहां से सेल की जो मॉर्फोलॉजी वो चेंज करेगा. दिस इज द साइंस बिहाइंड वेयरिंग जेमस्टोन. बट पीपल समझ नहीं रहे. उनको लगता है पत्थर पहन लिया, चलो अपनी लाइफ चेंज हो गई, इमीडिएट चेंज. हाँ, वो ऐसा नहीं हो सकता. तो सर, अगर 2026 की मैं बात करूं, हाँ, डू यू थिंक दैट 2026 प्लैनेटरी मूवमेंट्स के कारण बहुत सारे मिलियनर्स क्रिएट हो सकते हैं या बन सकते हैं? हाँ, अगर वो यूनिवर्स से अलाइन करे तो बन सकते आराम से. बट फॉर दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट बॉडी मेन ऑर्गन,
लाइक स्किन हो गया, हम्म देन मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक के जो पार्ट है, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम्म ये कोई भी पॉडकास्ट में कोई भी एस्ट्रोलॉजर बताने वाला नहीं है। ओनली वरिंग जेमस्टोन और डूइंग रेमेडीज you will not become rich or millionaire. You should have to heal your metabolism, your reproductive system by doing some remedies. ओके Yes, first work on yourself, do meditate, then go for universe. You cannot directly ask to universe कि एक मैंने 10 लाख का चेक लिख दिया एक विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन के लिए और मैंने लॉकर में रख दिया, उसको रोज देखता रहूंगा तो लोग बोल रहे एक हफ्ते में आपके पास कहीं से 10 लाख रुपए आ जाएंगे। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट मिरेकल। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट मिरेकल और लाइक मैजिक। each and every event we can calculate by planetary transit. This is the main base of astrology. First, predict the chart, align your planet's energy, and then make a move to change your body alignment. करेक्ट Then and then you will get a result. करेक्ट सो अगर मैं 2026 की बात करूं तो 2026 में कौन से राशि के लिए मतलब कौन सी राशि बहुत ही पावरफुल रहने वाली है? मेरे हिसाब से एक्वेरियस, सेकंड वन इज टोरस एंड थर्ड वन इज लियो. ओके फर्स्ट एक्वेरियस, सेकंड टोरस एंड थर्ड लियो. ये 3 राशि वालों के लिए 2026 बहुत ही बेहतरीन जाएगा. ओके और बाकी सब राशियों के लिए? ऐसा नहीं है बाकी सब राशियों के लिए खराब है, लेकिन वो मिक्स रिजल्ट देगा. इट नॉट कंप्लीटली बेनवेलट और कंप्लीटली मैलिफिक रिजल्ट. It's an average result. But yes, if you work on yourself, you will also get the same result like Aquarius, Taurus and Leo. Correct. As you rightly said, आपकी Yes. energies, आपके जो predictions, ये सारी चीजें आपकी body, ये तीन Yes. चीजें aligned होनी चाहिए तभी जाके आप Obviously. बहुत सारे अच्छे results create कर सकते हैं. Great. Right? अगर मैं बोलूँ, astrology can really predict who will become rich. Yes. According to me, I can predict. I don't know about any other astrologers, but I can predict the exact event when he will become or she will become a rich. I know that. Okay. So do you also guide your clients like कि ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और ये समय पे आप ये करोगे तभी जाके आपको अच्छा बूस्ट मिल सकता है? Obviously, suppose I am Leo ascendant और मेरे कारक प्लेनेट की महादशा चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, या तो फिर सूरज की खुद की दशा चल रही है, और उसमें भी जब अंतर दशा आएगी गुरु में चंद्र की, इट ऑलरेडी मेक गोइंग टू गिव यू गज केसरी योगा. व्हेन टू प्लेनेट कंजक्ट, फर्स्ट वन इज जुपिटर and second one is moon. So I know in 2027 April or March it's something, it will happen. Correct. In our life that will give me a lots of money. And at that time I will be a peak of my life, at the top of the life, like I have each and everything, money, luxury, wealth, bungalows, each and everything. Correct. But for that I have to align the Jupiter energy by wearing a yellow sapphire and by wearing moon. Correct. These two planets will give me a sudden wealth, name, fame, success. मैंने ना कई सारे entrepreneurs को देखा है, कुछ भी हो जाए but they are very successful. So do you think that it is because of their zodiac sign? It's a ratio. बोलते हैं ना वो राजयोग. नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है. It's a ratio of 60-40. Okay. 60% their hard work and 40% luck.
when it both will going to conjunct, they will got some kind of name, fame, success and wealth. आई डोंट थिंक सो. आपने कभी देखा है कि जो एंटरप्रेन्योर जो है उनकी जो जर्नी होती है ना, वो कैमरे के सामने अलग होती है और बैक स्टेज अलग होती है. Yeah, absolutely. ठीक है. सो एग्जैक्टली आप मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू ये देख के ये नहीं कह सकते कि इट्स कंप्लीटली सक्सेसफुल गाय. Correct. So we have to check both side, head also and tail also. कई लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद हम्म. भी like you know with so much of hard work they're not able to become successful. What is the reason? Their mentality. Most important thing is their mentality. They have to change their mentality. आप इतना ही सोचोगे तो आपको इतना ही मिलने वाला है. और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपके प्लैनेटरी पोजीशन वो ही फेवरेबल नहीं है तो आदमी क्या करेगा? गलत दिशा में जाके गलत जगह पे जाके इन्वेस्ट भी कर लेगा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हाँ, फिर वो तो अंदर डूबता गया, फिर निकलने में जो टाइम लग जाता है ना, उसमें आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है. सो आपके अकॉर्डिंगली कोई भी अगर बिजनेस शुरू करना है या फिर नया काम शुरू करना है तो उसके पहले आपको सही गाइडेंस की जरूरत है एस्ट्रोलॉजी वाइज. ऑब्वियसली. मान लो आप कहीं पे 5 CR या 10 CR का इन्वेस्ट करने जा रहे हो, सो अकॉर्डिंग टू मी आप 5,000 तो कम से कम एस्ट्रोलॉजर को दे ही सकते हैं. यस. इट्स जस्ट 0.001% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. आप अगर मान लो कि कुछ गलत स्टेप हो गया तो आपके सारे 10 करोड़ डूब जाएंगे. करेक्ट. इससे बेटर है कोई अच्छे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर का आप गाइडेंस लेके काम करें. तो क्या होगा, आप एक बेटर इन्वेस्टमेंट, आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो भी, आपका सही टाइम क्या है वो भी एस्ट्रोलॉजर बता देगा कि सर अभी आपकी मान लो कि शनि की दैया चल रही है तो आप रुक जाओ, 6 महीना रुक जाओ या 8 महीना रुक जाओ. आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर इन्वेस्टमेंट. करेक्ट. इट्स अ माइंड गेम ऑल्सो प्लस लक ऑल्सो. अगर आपका लक साथ में नहीं है तो आपको एस्ट्रोलॉजर सही टाइम पे नहीं मिलेगा. मैं आपको बता देता हूँ. करेक्ट. आपका अगर लक साथ दे रहा है तो आप कहीं पे डूबने वाले होते हैं ना, उसी टाइम पे आपको कोई ना कोई बोल देगा कि तू इतना सारा इन्वेस्ट कर रहा है तो जाके एक बार पहले कोई अच्छे से एस्ट्रोलॉजर या कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टर से जाके आप राय ले लो. करेक्ट. यू विल सेव योर कैरियर प्लस योर वेल्थ प्लस योर फाइनेंस. करेक्ट. यू राइटली सेड. मैंने ये देखा है कई बार आपका लक काम नहीं आता तो आप जितनी भी मेहनत करो, जैसे आपने बोला कि अगर आप 5 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रहे हो, राइट, तो बेटर टू टेक दी प्रिकॉशंस ऑब्वियसली rather than you know getting into something जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने पैसे लूज कर जाओगे. राइट. मुझे ये जानना है कि बर्थ चार्ट के हिसाब से लाइक यू नो कैन यू ऑल प्रेडिक्ट वेदर दैट पर्सन कैन डू ओनली जॉब और बिजनेस? ऑब्वियसली आई कैन प्रिडिक्ट. देखो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो केवल D1 चार्ट देख के प्रिडिक्ट कर देते हैं, बट आपको जॉब करनी है या आपको बिजनेस करना है, फॉर दैट यू हैव टू चेक द अष्टक वर्ग चार्ट ऑफ दी कुंडली. अगर मान लो उसमें 6ठे घर और 10वें घर का टोटल और 7वें घर और 11वें घर का टोटल, ये दोनों आप चेक कर लेना. अगर 6ठे घर और 8वें घर का टोटल कहीं पे 40 या 45 से अप है और 7वां घर और 10वें घर उसका टोटल कहीं पे 60 और 60 से अबव हो, तो आई कैन डेफिनेटली से दैट यू हैव टू गो फॉर बिजनेस. जॉब इज नॉट फॉर यू. ये एक सीक्रेट है. ये एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा नहीं. वो केवल D1 चार्ट देखेगा, आपके 6ठे घर का प्लेनेट, 10वें घर का प्लेनेट, 11th हाउस लॉर्ड एंड 2nd हाउस लॉर्ड, एंड जस्ट प्रिडिक्ट कि नहीं भैया आप जॉब कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो. बट दिस इज नॉट एन एस्ट्रोलॉजी. करेक्ट. अकॉर्डिंग टू मी यू हैव टू प्रिडिक्ट D1 चार्ट, D10 चार्ट, दशांश कुंडली प्लस
you have to go for Astakavarga prediction also. Then Acha, what and is then Astavarga? Astakavarga is the total strength of the planet. Okay. सपोज के पहले घर में कुंडली के पहले चार्ट में 30 पॉइंट है, Hmm. दूसरे हाउस में 24 पॉइंट है, तीसरे हाउस में 26 पॉइंट है. तो ये सब प्लेनेट की जो एनर्जी है, एग्जैक्टली वो हाउस को लेकर जो एनर्जी है Hmm. उसका टोटल लिखा रही है. अगर मान लो जिस हाउस में मोर देन 25 या 26 पॉइंट है, अगर प्लेनेटरी ट्रांजिट के दरमियान कोई प्लेनेट वहां पे आएगा तो वो उसका रिजल्ट 100% देगा. ये सीक्रेट है. अगर मान लो मेरे पहले घर में 35 पॉइंट्स है, Hmm. अगर गुरु वहां पे आके बैठ गया, लियो एसेंडेंट है, गुरु वहां पर आके बैठ गया, then it will definitely give me when Jupiter aspect, like from very first house Jupiter will aspect 5th house, 9th house and 7th house. Mhm. ये तीनों घर का जो रिजल्ट है वो मुझे मिलेगा. Wow, that's amazing. I mean, it's too in depth. मतलब Yes. बहुत सारी चीजें जो समझनी एस्ट्रोलॉजी वाइज बहुत जरूरी है. तो अगर मैं प्लैनेट की बात करूं, कौन सा प्लैनेट है जो हमारे लिए, कौन सी राशि ऐसी है जो वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? वेल्थ क्रिएशन के लिए राशि, आई डोंट थिंक सो कि राशि इज इम्पोर्टेंट. Which आप planet basically? planet is first राहु, because we are living in कलयुग. हम कलयुग में जी रहे. Correct. और कलयुग का जो राजा है ना वो राहु है. राहु itself not a planet, it's a shadow planet. Correct. But wealth, health, name, fame, success, उसके पीछे एक ही आत्मा आप बोलो काम कर रही है तो वो है राहु की आत्मा. इट्स हैव इमेंस पावर. So how जो फिजिकली प्लेनेट नहीं है, अगर मान लो वो एक्लिप्स लगा सकते हैं सूर्य और चंद्रमा को, तो वो क्या नहीं कर सकते. Exactly. इट्स द बिगेस्ट. और राहु अगर देता है ना तो बोलते हैं ना लोग छप्पड़ फाड़ के देता है. अगर किसी की राहु की, कई लोग राहु के नाम से डरते भी है. डरते वो लोग हैं जो राहु को समझते नहीं है, उसकी एनर्जी को नहीं समझते. राहु के एक बादल है. और पर्सनालिटी ट्रेड्स को भी नहीं समझते राहु की. एग्जैक्टली. उनकी दशा महादशा या अंतरदशा में मान लो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए तो हो सकता है यू विल बी चीटेड इन दैट रिलेशनशिप. यस. क्योंकि वो तो आपको ढूंढला ढूंढला ही लिखेगा, आपको साफ छवि सामने वाले की दिखेगी नहीं. व्हाट एग्जैक्टली हिज और हर इंटेंस टुवर्ड्स यू. समटाइम्स दे फॉलो फॉर मनी, sometimes just for name, fame, success they follow. राहु illusion, nothing else. illusion है राहु. वो आपको ऐसे ऐसे सपने दिखाएगा ना, आप जमीन पे बैठे बैठे आप स्पेस में पहुंच जाओगे. उसकी इतनी पावर है. बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक रिजल्ट विल बी 0. ओके. अगर जिसने राहु को समझ लिया वो जीत गया. तो क्या करना क्या चाहिए राहु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और राहु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, नॉट इन नेगेटिव वे. इट्स सिंपल वे है जो मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया. एंड वेरी फर्स्ट टाइम आई एम डिस्क्लोज इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट टेक सम चारकोल्स, जो कोयला होता है ना, वो कोयले लो और एक श्रीफल नारियल, कोकोनट. ये दो चीज से आप एकदम इजीली राहु की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो. उसको क्या करना है, जब भी आपकी कुंडली में देख लेना पहले तो राहु का डिस्पोजिटर कौन है. अगर मर्क्यूरी है या सैटर्न है, अगर मर्क्यूरी है डिस्पोजिटर तो आपको ये रेमेडीज बुधवार के दिन शाम को करनी है. अगर शनि है उसका डिस्पोजिटर तो आपको ये रेमेडी शनिवार के दिन शाम को सूरज ढलने के बाद करनी है. ओके. आप कहीं पे भी जहाँ पे बहता पानी दिखे वहां चले जाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू
रिमेम्बर योर एंसेस्टर, जो आपके पूर्वज है उसको आपको याद करना है। फिर धीरे धीरे हल्के हाथ से ओम रम रहावे नमः, ओम रम रहावे नमः, ओम रम रहावे नमः बोलते हुए आपको ये कोयले पानी में बहा देने हैं। आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू कीप योर कोकोनट इन योर हैंड, जस्ट मेक योर विश एंड अगेन ओम रम राहवे नमः बोल के वो नारियल को आपको बहते हुए पानी में बहा देना है। सो ये आपको कितनी बार करना है? जब तक राहु की दशा चल रही है तब तक। ओके, हाँ, आप अंतरदशा मतलब हर महादशा में भी, बुधवार या फिर हर शनिवार? यस, ओके। फर्स्ट यू हैव टू चेक वेयर इट्स डिस्पोजिटर, हम्म, वो आपको चेक करना रहेगा। ओके, देन you can do it. And I had an experience in 2012. I just started to connect my energy with Rahu. 2015 में मैंने उससे कनेक्ट कर लिया and in 2021 I got the result. Each and everywhere I got name, fame, success. ओके। By doing these remedies. This is the secret. सो इससे कोई भी Anybody can do it. So simple thing. I am in Rahu Mahadasha since 2012 and it's long been 18 years. राहु की दशा 18 साल की होती है। अभी 2030 में उसका पर कई दौर लोगों के खत्म दिमाग होगा। में ये भी है ना कि राहु की महादशा है, काम डिले हो रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? नो नो, राहु कभी भी डिले नहीं करता। राहु कभी भी आपके काम को डिले नहीं करता। वो आपको फ्लॉप ही कर देगा, नहीं तो आपको कोई दूसरी दिशा में डाल देगा। इट विल नेवर डिले। सो एज यू राइटली सेड, इल्यूजन। यस, इल्यूजन। डिले केवल एक ही प्लेनेट करेगा, लॉर्ड सैटर्न। करेक्ट। बट इट विल डिले बट इट नॉट डिनाई। हाँ, मैं आपका काम लेट कर सकता हूं लेकिन मैं देने को मना नहीं कर रहा हूं। आप डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंसी रहो और जो आपका कैरियर है उस पर आप फोकस रहो। तो जैसे आपने सैटर्न की बात की, यस, जैसे आपने कहा कि सैटर्न काम को डिले करता है, यस, बट डू यू थिंक कि लॉन्ग टर्म इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं? एग्जैक्टली। मतलब फॉर बिजनेस पीपल बेसिकली यस, इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग। आपको करना क्या है, शनि महाराज ये नहीं बोल रहे कि मैं नहीं दूंगा। आप अपना काम दिखाओ, बिकॉज इज द कार्मिक प्लैनेट, इज द प्लैनेट ऑफ जस्टिस। जैसे कर्म आपने पिछले जन्म में किए उसके हिसाब से आपको फल इस जन्म में मिलेंगे। यानी कोई बंदा या बंदी ये सोच रहा है कि मैं मर्डर करके भी खुश हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं जेल से बाहर हूं, तो भैया इसका जो फल है वो आपको अगले नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। आप कंटिन्यूस। यस, इट्स कर्मा कंटिन्यूस। बट शैतान एक ही चीज बोल रहा है, ट्राई टू बी ऑनेस्ट, follow discipline and just do your work very calmly. Correct. Though it will be late, but I will give you for long lasting results, long lasting. कहीं बार 36 साल के बाद आदमी का काम शुरू होता है। करेक्ट। बट उसको आप देखना कि पिछली लाइफ बहुत आसानी से कटेगी, कुछ करना नहीं है पिछली लाइफ में। तो कई बार मैंने देखा है ना, आफ्टर 35 लोग अचानक से सक्सेसफुल हो रहे हैं। यस। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? शनि 36 के बाद ही रिजल्ट देता है। मतलब 36 तक आपको गधे की तरह मेहनत करनी है। आई एग्री। फिर आपको एक ऐसा लाइफ में टर्न आएगा कि कहीं से आप कोई बड़ा सा इन्फ्लुएंसर या मेंटर आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपको केवल एक उंगली देगा, बिकॉज यू हैड ऑलरेडी दैट एक्सपीरियंस। जो करना था, जो आपको स्ट्रगल, हर्डल, जो लाइफ चैलेंजिंग पीरियड था वो आपने फेस किया। नाउ यू गॉट एक्सपीरियंस खिलाड़ी इन दिस फील्ड। सो अभी एक बड़ा सा आदमी आएगा, बेटा ये काम कर ले, मतलब कोई उंगली पकड़ने वाला आ जाएगा जो आपको आगे लेके जाएगा। हाँ, वो लाएगा कौन? केवल शनि। फर्स्ट यू हैव टू पे, फर्स्ट यू हैव टू सैक्रिफाइस, देन एंड देन आई विल गिव यू। इट्स द मोटो ऑफ लॉर्ड सैटर्न। करेक्ट, करेक्ट, वेरी राइटली सेड। यस। 35 36 के बाद अचानक से ऐसे हो जाता है। सैटर्न मतलब हर एक प्लेनेट की एक एक्टिवेट जो मैच्योर होने की एज होती है, 36 के बाद शनि मैच्योर होते हैं। अच्छा। यस। मर्क्यूरी होगा तो 32 इयर्स के बाद। और सबसे जल्दी मैच्योर होने वाला प्लेनेट है जुपिटर, एट द एज ऑफ 14 और 16। इफ आपकी दशा चल रही है
तो आप देखे होंगे ना छोटे छोटे बच्चे एकदम हाँ एकदम आ गए रियलिटी शो में वायरल। एकदम यस लाइक दैट जुपिटर Okay. महादशा एंड जुपिटर itself active at 14 और 16 Okay. ये साइंस है Hmm. ये साइंस है जो Correct. लोग बोल रहे हैं ना Yeah, it is. कि एस्ट्रोलॉजी इज फेक बट एस्ट्रोलॉजी इज साइंस Yeah, it is science. यस You rightly said. मैंने कई सारे बिलियनर्स देखे हैं, राइट? डू यू थिंक ये जो बड़े बड़े बिलियनर्स होते हैं वो कोई भी काम करने के पहले एस्ट्रोलॉजी से, मतलब एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शंस जरूर लेते हैं? 110%। अब जितने भी बिलियनर्स हैं ना सबको देख लेना मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर स्पिरिचुअल एंटिटी एस्ट्रोलॉजर से मिले ना मिले इट्स सेकेंडरी थिंग फर्स्ट they are himself or herself a spiritual entity. Yeah, true. अब बिल गेट्स को भी देख लो या मुकेश अंबानी को भी देख लो they are spiritual Very person spiritual, yes. and that spirituality align him with an astrology because spirituality is the part of an occult science is astrology. आप spiritual healing ये सब आप कनेक्ट करोगे ना Yeah, साइकिक जो भी एबिलिटीज है yeah. कार्मिक रिलेशनशिप है इट्स ऑल आर ब्रांचेस एंड ऑल आर पार्ट ऑफ अकल्ट साइंस सो अकल्ट साइंस इज सो डीप एंड सो इंटरेस्टिंग Very, very. so interesting subject and astrology is just a simple Small thing, part of small it. part of this occult. So आप relationships की बात कर रहे थे. Yes, Do you think that astrology can predict marriages or relationships? obviously मैंने आपको पहले ही बताया कि आप कोई भी ब्रेकअप हो या डाइवोर्स हो उसके पीछे मेन 4 प्लेनेट है फर्स्ट वन इज मार्स सेकंड वन इज लॉर्ड सैटर्न थर्ड वन इज राहु एंड फोर्थ वन इज केतु और इसके लिए भी आपको केवल D1 चार्ट देख के आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कहीं आप अगर लड़के या लड़की की कुंडली मिलान करवाने जाते हो आजकल लोग शादी से पहले ये कंपलसरी देखते कि आगे जाके इन लोग का फ्यूचर क्या है यस प्रेडिक्शंस आर देयर और मैं आपको इधर बैठे बैठे बता देता हूँ कि 99.9% एस्ट्रोलॉजर नवमांश कुंडली को निग्लेक्ट करते हैं जो कि वो मेन चार्ट है D1 is nothing but for marriage and your love life, your relationship. For that you have to check D9 chart. अगर उस कुंडली में आपका शुक्र या शनि या मंगल कहीं मैलिफिक है डेबिलिएटेड है या तो कहीं अस्त का होके बैठा है then you will definitely get a chance of double marriage or like an extramarital affair. This situation will occur. Okay. You can predict that from D9 chart. Okay. Not only D1 chart. Astrology is so deep. केवल आप D1 चार्ट देख के किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. So guys, kindly go for D1, D9, D10, and if you want to check wealth, how much wealth that people have, for that D4 chart is compulsory. We have to see guys. D4 chart is होरा चार्ट जिसको हम होरा कुंडली बोलते हैं. उसमें अगर कर्क या सिंह लग्न है और उसी में आपके वेल्थ के प्लैनेट पड़े हुए हैं then I will definitely say that you will be a millionaire. So kindly go for Hora chart. It's so interesting subject for each and every single aspect like wealth, health, your name, fame, success, each and every aspect. Even on which date you will going to die. If you want to know, then you have to check D30 chart, that Christmas chart. For that, I can predict exactly on which date he or she will going to die. But basically, हम ऐसा कभी किसी को बताते नहीं है. जब कोई इंसान लास्ट स्टेज पे होते हैं, at that time we use this kind of format, this kind of tools.
कि भाई अभी उसके पास और कितना टाइम है. Oh my God. So astrology can predict anything and each everything. yes, each and everything can predict by astrology, Hmm. but सामने वाला बंदा जो आपकी कुंडली चेक कर रहा है उसमें कितनी पावर है, उसका इंट्यूशन लेवल क्या है, वो खुद हील्ड होके बैठा है उधर, या तो फिर उसका जो नॉलेज है वो आप पहले चेक कर लेना. कभी भी किसी के बड़े दिखावे में आके अपनी लाइफ का डिसीजन किसी गलत इंसान के हाथ में मत मत दे दे. देना. आई काइंडली रिक्वेस्ट यू. True. It's very important to Yes, understand the reality. जैसे ऑब्वियसली. आपने रिश्तों की बात की, रिलेशनशिप्स की बात की, तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि कुंडलियां मिलवानी पड़ेगी, लाइक यस. गुण मिलने चाहिए. तो क्या ये कुंडली जो मिलाना होता है या फिर गुण मिलाना होता है, तो आपके पार्टनर के आने से डू यू थिंक कि फाइनेंशियल डेस्टिनी भी चेंज हो जाती है? देखो, हर बार ऐसा नहीं होता है. हम्म. मैं एक चीज बोल दूं, हर बार हाँ. ऐसा नहीं होता है. हम्म. अगर आपके पार्टनर की कुंडली में सातवें घर का मालिक हम्म. अगर हमारी कुंडली के मतलब जो मेल और फीमेल है दोनों को आप सेवंथ लॉर्ड है वो आप चेक कर लो. अगर उसका सेवंथ लॉर्ड और इसका सेवंथ लॉर्ड कहीं एक समान है, या तो फिर सेवंथ लॉर्ड एक्सोल्टेड है, मान लो मेरी वाइफ की कुंडली में सेवंथ लॉर्ड एक्सोल्टेड है, then I will be millionaire by her luck. Oh. Yes. And if she is working woman, for that chance we have to go for my chart. मेरे सातवें घर का मालिक कहाँ जाके बैठा है. If it's debilitated, then it should be like that कि कहीं उसका अच्छा खासा धंधा चल रहा हो वो वहां से नीचे आ जाए. ओ, मतलब दोनों Yes. का वाइस दोनों वर्सा है. को एक दूसरे के कंप्लीटली ऊपर मतलब इश्यूज डिपेंडेंट हो है. सकते हैं, ऑब्वियसली. वंस यू आर टुगेदर, वंस देयर इज अ पार्टनरशिप. बट आजकल लोग वो चीज के लिए चेक नहीं करते कुंडली कितने वसा मिल रहे हैं. पंडित जी या मतलब एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं कि हमारी कुंडली में कहीं नाड़ी दोष तो नहीं है, हाँ. कहीं एक मांगलिक है तो कहीं नॉन मांगलिक है तो हम मैरिज कर सकते हैं. ये सब चीजों के लिए हमारे पास आते हैं. बट आप मांगलिक दोष की बात कर रहे थे, डू यू थिंक मांगलिक दोष इज डेंजरस? नो, नथिंग. आई काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स, मांगलिक दोष इज नथिंग. You just have to check that person kundli and your girl kundli. If it is get more than 18 or 20 points, you should have to go for check on the nadis. There is nothing like मांगलिक दोष. एंड वो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कोई लड़की मांगलिक है और कोई लड़का सिंपल है मतलब नॉन मांगलिक है तो आप उसकी शादी वो लड़के से नहीं कर सकते, ऐसा जरूरी नहीं है. देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन आर वेदिक एस्ट्रोलॉजी. वो लड़की का आप कहीं पे कुंभ विवाह करवा लो, अस्तक विवाह करवा लो या विष्णु विवाह करवा लो. आफ्टर डेट वो लड़की ये लड़के के साथ शादी कर सकती है. सो पेरेंट्स डोंट बी पैनिक. मंगल दोष मतलब हर किसी की कुंडली में मंगल को कहीं ना कहीं तो बैठना ही है. यहाँ कहीं पे 12वें घर में होगा, पहले घर में होगा या चौथे घर में होगा, 7वें घर में होगा या 8वें घर में होगा. मतलब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मंगल वाटर साइन में है. फॉर डेथ रीजन क्या होता है कि एक फायर और एक वाटर एनर्जी ये दोनों क्लैश होती है. इसके लिए हम मांगलिक और नॉन मांगलिक के बीच में ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं. बट एग्जैक्टली देयर इज नथिंग लाइक दैट. कुंडली में 12 घर है, 12 घरों में से मंगल को कहीं ना कहीं तो बैठना है. सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट द पर्सन इज मांगलिक और नॉन मांगलिक. दैट्स द रियलिटी. दैट इज रियलिटी. लोग आजकल बच्चे लव मैरिज, हाँ, ये तो मुझे लगता है ट्रेडिशन ही मानते आए हुए, ट्रेडिशनली ये मानते हुए है कि भाई मांगलिक दोष की लड़कियों के साथ शादी नहीं कर सकते. हाँ. या फिर कोई ना कोई इश्यूज होंगे, शादी ब्रेक हो जाएगी. So, I mean, all these things has been created. It's only might, nothing else. हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं पे मांगलिक दोष जैसा बोला ही नहीं है. ये तो बनाया बनाया हुआ है. There is nothing like मांगलिक दोष.
मांगलिक दोष मीन्स कि मंगल जो है वो वाटर साइन में है. फॉर डेट रीजन एनर्जी जस्ट क्लैश. सो इट नथिंग लाइक दैट कि आप मांगलिक हो और मैं नॉन मांगलिक हो, वी विल नॉट गो फॉर मैरिज. देयर इज नथिंग लाइक दैट. So basically, you are working with lot of businessmen and like jewelry related businesses. So आपको क्या लगता है, like do they really believe in your predictions and astrology? 100% they believe. And what difference does it make in their life? आई थिंक बहुत सारे बिल्डर्स है, ज्वेलर्स, मोस्टली दे आर बिलीविंग इन नंबर्स एंड दे आर बिलीविंग इन वास्तु. दे बिलीव इन एनर्जी. आजकल इतने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं ना, कोई भी नया प्रोजेक्ट है, कोई भी नया प्लान उनको लॉन्च करना है, उससे पहले वो क्लाइंट को क्या बताते हैं कि 100% वास्तु एनालिटिक स्टूडियो और एनालिटिक स्टूडियो फ्लैट यू कैन बाई फ्रॉम अस. सो वो लोग क्लाइंट को भी यही बताते कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली वास्तु के हिसाब से बना हुआ है. और हम मोस्टली ज्वेलर्स के जो भी शोरूम में जाओगे ना, तो वहां पे आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी. दे आर वाइडली यूज टर्टल लाइक गोल्डन टर्टल एंड स्फटिक पिरामिड. These both things have a verbal power for ज्वेलर्स. आप ज्वेलर्स की जैसे भी शॉप में एंट्री कर रहे हो ना, तो आपको एक अलग सी एनर्जी महसूस होगी. करेक्ट. आपके जेब में चाहे पैसा नहीं भी होगा ना, पर परचेस करने आप परचेस कर लोगे. राइटली सेड. उनका एनवायरनमेंट वो उसके हिसाब से बनाते हैं. और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप देखना, वो लोग शाम के टाइम पे कपूर जो आते हैं ना, भीमसेनी कपूर, वो मोस्टली हाफ और 1 आवर तक वो लोग चलाते रहते हैं. जितनी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो सब रिड्यूस हो जाएगी. और वहां पे जो पोछा भी लगाते हैं ना, उसमें वो लोग सेंधा नमक डालते हैं. इट विल ऑल्सो cluttered the negative energy of the showroom. So widely builders and jewelers, not only builders and jewelers, there are lots of businessmen in nowadays using astrology and vastu tips. Because अभी तो आपने बहुत सारे देखा होगा कि जो पायराइट के 7 और 6 की फ्रेम लगा रहे हैं. जस्ट गिव यू अ पावर इन योर बिजनेस. आप कहीं पे स्टक हो गए हो, तो आप केवल यू जस्ट हैव टू वॉच टूवर्ड्स दैट हॉर्स. यू विल गेट क्विक आंसर एंड नाउ एग्जैक्टली विच स्टेप आई हैव टू टेक. सो दिस इज समहाउ people connect with the energy from the metal or any crystals. Pyrite is crystal. तो जैसे आप क्रिस्टल्स की बात कर रहे हो और क्विक सॉल्यूशंस की बात कर रहे हो, मुझे ये बताइए कि जिनको क्रिएटिव, जो लोग ऑलरेडी क्रिएटिव फील्ड में है, उनके लिए कोई ऐसी टिप्स जो उनको करनी चाहिए या पहननी चाहिए जिससे उनके सक्सेस के लिए बहुत, उनके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है? देखो, बेसिकली देयर आर 3 स्टोन्स. फर्स्ट वन इज फिरोजा, टर्कीज ईरानी फिरोजा. सेकंड वन इज सुलेमानी अकीक एंड थर्ड वन इज ब्लू सफायर. It will completely change your life. I am 100% sure. Because मैंने मेरी लाइफ में जो चेंज लाया है, वो some small remedies like mantra chanting, and I am using, I had one also Turkish Irani Firoza. This one, this bracelet, this one, and this Sri Yantra. It's with a sphatic crystal. It always give me a positive energy. Since last 6 years, I had worn this. In any podcast with any celebrities, you had seen in my neck. Yeah. So basically, I try to play with energy and crystals energy. Correct. Crystals energy. Using some ideas and give strength to myself also. So I suggest that Firoza, Suleimani Haqiq and Blue Sapphire
उसमें ऐसी पावर है जो आपको क्विक रिजल्ट दे सकते हैं. Okay. And I am 100% believe that Firoza is the most powerful stone I had ever used in my life, and I had ever seen its energy. Correct. I had an experience of Firoza. Hmm. और ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट को भी मैंने फिरोजा पहना है और उनके भी अच्छे रिजल्ट आए. Correct. सो आई ट्रस्ट. The लेकिन energies, ये जो यस, gemstones में होती है उसकी उनकी जो एनर्जीज अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है. हाँ, लेकिन मेरा क्लाइंट होने का एक फायदा और भी है कि आपको अपने आप को हील कैसे करना है ना, वो भी वो आप भी मैं ऑरा स्कैनिंग से आपके चक्रस हील करके मैं बताता हूँ कि सर आपका ये चक्रस प्रॉपरली बैलेंस Depleted नहीं है. है. हाँ, तो आपको उसके ऊपर काम करना है. फिर आप वो रेमेडीज करो मैंने जो बताया वो. दिस इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग माय क्लाइंट. करेक्ट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खाली एस्ट्रोलॉजी नहीं, आपको जैसे आपने स्टार्टिंग में ही हाँ, शुरुआत में ही कहा कि आपको खुद को हील करना है. कंप्लीटली हील करना राइट. है. आपको खुद को हील करना है. आपकी एस्ट्रोलॉजी ये सारी चीजें कंबाइंड विल हेल्प यू. यस. It's not only your astrology prediction, या हम्म. it's not only about your chart, it's about you as a person, यस. right? मुझे ये जानना है कि हम 7 चक्रास को किस तरीके से एक्टिवेट कर पाए. बाय डूइंग साउंड हीलिंग, बाय डूइंग रेकी, बाय डूइंग क्रिस्टल हीलिंग. देयर आर लॉट्स ऑफ modalities in our astrology. By using, you can cleanse your chakras, cleanse your energies, and आप वो चक्र को अपने बॉडी के जो सेल है उसकी एनर्जी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो. देन इट विल गोइंग टू गिव यू अफेक्ट. आपके जो नर्व से न्यूरॉन से वहां तक सबकॉन्शियस तक आपको कोई मैसेज पहुंचाना है तो ये 7 चक्रस ही है. और उसमें भी बेसिकली थर्ड आई चक्र एंड रूट चक्र, दिस बोथ चक्र आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. मैं मेरे क्लाइंट को भी बोलता हूँ आपने अगर कुछ नहीं है ना आपके पास लाइफ में, ना तो आपके पास आपका चार्ट है, ना तो आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ना तो इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, जस्ट बैलेंस द एनर्जी ऑफ योर थर्ड आई एंड योर रूट चक्र जिसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, उसकी एनर्जी को आप केवल बैलेंस कर लो. फिर देखना आपके कैसे रुके हुए काम भी फटाफट होने शुरू हो जाएंगे. करेक्ट. को एक ऐसी क्विक टिप बता दीजिए. हाँ. अगर किसी को भी वायरल होना हो, किसी वायरलिटी की से ये डिजिटल का जमाना है. हाँ. right? लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी वायरल होना है. अच्छा. रातों रात लोगों को वायरल होना है. तो ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास कोई टिप्स या ऐसी कोई प्रेडिक्शंस या फिर ऐसी कोई चीजें हैं जिससे हम एक्टिवेट करके वायरलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं. एक मंत्र है, एक ही मंत्र है जो हम यूज करके रातों रात वायरल हो सकते हैं. इज इट? यस. बहुत इजी मंत्र है और आई थिंक कि बहुत कम लोगों को ये मंत्र मालूम होगा. जैसे हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उस टाइम पे हम उसमें थोड़ा हल्दी, कुमकुम, चावल वो सब मिलाकर उनको पानी अर्पण करते. उस टाइम पे आपको केवल एक ही सेंटेंस बोलना है और वो मंत्र है ओम रीम रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनो वांछित फल देही देही स्वाहा. मैं मंत्र वापिस से रिपीट करता हूं. ओम रीम रीम सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनो वांछित फल देही देही स्वाहा. ये संस्कृत है. इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि हे सूर्य नारायण देव, मेरी जो मन की इच्छा है, वो मेरा जो मन वांछित फल है, वो जो आपकी किरणों में वो ताकत है, वो मुझे आप खाली एनर्जी दे दो. फिर देखना आप कहां से कहां तक पहुंच जाओगे. ये मैं करता हूं. आज तक किसी को नहीं बताया, आपको पहली बार बताया है. थैंक यू सो मच. ये रेमेडीज शायद हमारे व्यूवर्स के ये obviously तभी आ रहा है ना. मैं भी बहुत यूनिवर्स में मानती हूँ. ये तभी हमारे जबान पे भी तभी आ रहा है ताकि कोई ना कोई इससे फायदा कर ले. राइट. कहीं ना कहीं किसी को ये चीज की जरूरत है. ये तो जो व्यूअर्स है वो जो नसीब वाला होगा ना, उस तक ये पॉडकास्ट पहुंचेगा.
एब्सोल्युटली, हाँ। आई एग्री। अभी जैसे अभी करंट सिचुएशन जो हमारी है, अभी 2-3 दिन पहले हमने मोदी जी से ये भी सुना है कि जैसे लॉकडाउन जैसे कंडीशंस आने वाले हैं। एनर्जी लॉकडाउन के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो वैसे कंडीशंस आने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी या फिर प्लैनेटरी मूवमेंट्स, आपको क्या लगता है? मैं एक बात बताऊं, ये जो युद्ध की स्थिति है, ईरान इजराइल और अमेरिका भी अभी तो बीच में आ गया है, या तो ये स्थिति कम से कम 15 अप्रैल तक रहेगी। 15 अप्रैल 2026 तक रहेगी। उसके बाद में वापस सब नॉर्मल हो जाएगा। ओके, हाँ, सो पीपल डोंट हैव टू बी पैनिक। इट इज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट ऑल्सो, आई वुड लाइक टू से। सो डोंट बी वरी, इलेक्शन आ रहा है, हाँ, डोंट बी पैनिक, डोंट बी वरी। मोदी जी हमारे लिए ही है, हमारे साथ ही है और हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। वो तो थोड़ा बहुत अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है, हालांकि इसके पीछे का जो रीजन है वो अलग है। अभी शनि महाराज सूर्य के साथ में एक ही घर में बहुत क्लोजेस्ट डिग्री पर है। इसका मतलब ये हुआ कि शनि कंबुस्ट हो गया, शनि अस्त का हो गया, अष्टम का हो गया, और वो भी गुरु के घर में शनि अष्टम का हुआ है। सो इसका अफेक्ट ये हुआ है। बाकी आप देख लेना 15 अप्रैल 2026 के बाद से ये स्थिति एकदम से नॉर्मल हो जाएगी, जैसे कि कभी हुई नहीं थी। हाँ, जैसे मतलब एक छोटा सा ट्रेलर आपने देख लिया, पिक्चर आने वाला है नहीं, पिक्चर रिलीज नहीं होगा। करेक्ट, और मोदी जी होने भी नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं। इट विल नॉट हैपन। सो थैंक यू सो मच, वी हैड वंडरफुल कॉन्वर्सेशन, काफी सारी चीजें सीखने मिली है और समझने भी मिली है। दो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। आई एम अ स्कॉर्पियन, ओके, तो 2026 स्कॉर्पियन के लिए कैसे होने वाला है? देखो स्कॉर्पियन के लिए 2026 अच्छा रहेगा। हालांकि आ, जून जुलाई यहाँ तक का पड़ाव थोड़ा अप एंड डाउन्स वाला रहेगा, बट जुलाई के बाद का जो टाइम है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, it's be going to very fantastic. You will get your charm again, and you will have your cherished desire, I think, will be fulfilled after the June and July, because mostly Jupiter will going to transit in Cancer. So जब ये गुरु अपनी उच्च की राशि में होगा तब जाके स्कॉर्पियन के लिए बहुत ही बड़ा फायदा करेगा, बिकॉज बोथ आर फ्रेंडली प्लैनेट। करेक्ट, मार्स एंड जुपिटर बोथ आर फ्रेंडली प्लैनेट, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। स्कॉर्पियन के लिए मैं एक अगर रेमेडीज में बोलना चाहूँ छोटी सी, तो उनको केवल एक ही काम करना है। हर मंगलवार के दिन थोड़ी सी मसूर की दाल लेके किसी को आप बांटना शुरू कर दो, हर मंगलवार के दिन। फिर देखना आप जैसे जैसे मंगलवार गुजरता जाता है वैसे वैसे आपके लाइफ में कैसे ट्विस्ट आते, कैसे टर्निंग पॉइंट आते, वो स्कॉर्पियन के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और ऐसी कौन सी स्ट्रॉन्ग राशि है जिसके लिए 2026 वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल बन सकते हैं? एक्वेरियस। अब पहले से भी मैंने बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ, एक्वेरियस एक ऐसी साइन है जो उन्होंने सोचा नहीं होगा वो मिलेगा। हाँ, लेकिन आफ्टर जुलाई एंड अगस्त, नॉट राइट नाउ। करेक्ट, वैसे भी उनका 7.5 का आखिरी पड़ाव चल रहा है, वो भी अगले साल में खत्म हो जाएगा। मतलब ये जाते जाते शनि महाराज उन लोग को जो आगे के 7 साल तक जो परेशान किया है ना, वो सारी परेशानियों का निचोड़ एक ही बार में दे देंगे। हाँ, लेकिन आपकी कुंडली में शनि कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुंडली में ही डेबिलिटेड शनि है तो यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम लॉर्ड सैटर्न until and unless if you had done some remedies for that, like mantra chanting of Lord Shani Deva, candle lighting near the pipal tree, and you have to donate liquor to the old and poor people. These are some basic remedies that you had done in this 7 sadesati, then you will get benefit of in nearer after means July, August, September, you will get the benefit. बट आप 7.5 की बात कर रहे हो, लॉट मेनी पीपल फियर 7.5 कि 7.5 चल रही है मेरी कुंडली में। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ 7.5? मैम, डरते वही लोग हैं
जिन्होंने गलत किया है, और डराता भी वो उसी को है कि जो गलत काम करते हैं। बाकी एक सिंपल एग्जांपल दूं, ऐसा नहीं है कि साढ़े साथी हर किसी को, इट्स लाइफ लेसन, ये एक छोटा सा लाइफ लेसन है। जो 7.5 साल का पीरियड है वो आपको लाइफ में एक लेसन देके जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे कहाँ कदम रखना है, कहाँ नहीं रखना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन दिल से अपना है, कौन मतलब केवल सिर्फ फॉर्मालिटी कर रहे हैं आपके साथ, ये सारा जो पिक्चर है ना वो आपको 7.5 साल में आपके सामने आ जाएगी। मीन्स इट्स जो आती है वो अच्छे के लिए आती है, मतलब वही 7.5 साल में आपको रियलिटी रियलिटी, हाँ, वो सब समझ मालूम में आ पड़ जाएगा। जाएगा। यस, उसके बाद तो फिर आपको कोई परेशान करने वाला है नहीं। शनि महाराज भी आपको छोड़ देंगे, जा बेटा तू खुश रहे, मैंने जो सिखाना था तेरे को सिखा दिया, अब It is बाकी। basically learning lessons. यस, Okay. So thank you so much once again. One last message for our audience. never listen to anyone, only just listen to your heart. If you want to get success in your life, kindly just focus on your work. Nothing else will help you to get rid out of any challenging period. So kindly focus on your work, kindly listen to your heart, and always take bliss from your Blessings. parents. Nothing else. Thank you so much. Last message for our platform, Ek Soch. I think this is a very wonderful platform, and I think from these unique ideas, Ek Soch will be a very famous program in very nearer future. And ma'am have also a good talent, and he have also a good positive vibes. From being here, I had got I get so many things to learn from you, and I will develop myself for build up my career. Thank you so much. Coming from an astrologist itself is kind of, I can say it's kind of a reward for me. Coming all positive and kind words from you helps me a lot. Like in Thank near you. future, as you said, that it's all about believing in yourself. Right? It's very important कि आप अपने आप पे believe करो. Astrology is important, predictions are important, but at the same point of time, if you'll not heal yourself, Yes. you'll not be able to heal anything which is around you. Right? So thank you so much once again. We had wonderful conversation. I enjoyed the entire conversation. मेरा ये conversation और भी लंबा चले जाता, but I have team who has been taking care of it. Yeah, sure. With the timing. So thank you so much once again. And to all the viewers, guys, do not just blindfold yourself and believe in everything that is coming to you over reel in terms of astrology, in terms of prediction, numerology, planetary movements. Just take right guidance from an expert who have actually studied in detail about astrology. It can change your life in a positive way, and it can also change your life in a negative way. So kindly take right guidance from a right person, and now you know whom you need to approach if you want to build your career, build your relationship. You want a prediction when you are going to be successful, or you want a prediction where you are going to lose your money. You need to approach Dr. Vishalji. Thank you. Thank you so much once again. Don't forget to like, share, and subscribe, and see you in the next episode.